السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آج کی ویڈیو بہت خطرناک ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے لفظ کی کہانی رکھنے جا رہا ہوں جس کو آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کا نام ہے کلٹ۔ یہ کلٹ کیا ہے، یہ کیسے چلتے ہیں، اور سیاست میں اس کلٹ کا کیا کردار ہے، یہ کلٹ ملکوں کو نقصان کیسے دیتے ہیں، آج ہم اس موضوع پر غور کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر فرحان بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد منٹری۔ اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام ہیرلڈ کیمپنگ ہے۔ یہ امریکہ میں بہت مشہور پادری تھا۔ اپنی مقبولیت کے دور میں اس کے 140 سے زائد ریڈیو چینلز امریکہ میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، جبکہ بیرون ملک بھی بہت بڑی فین فالوئنگ۔ وہ سب شخصیت پرست تھے اور کیمپنگ پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس نے 21 مئی 2011 کو اعلان کیا کہ دنیا میں قیامت آئے گی اور 20 کروڑ لوگ فوت ہو جائیں گے۔ کیمپنگ نے اتنی تفصیل سے ساری کہانی بیان کی کہ اس کے تمام ماننے والے اس پر یقین کر بیٹھے اور 21 مئی کا انتظار کرنے لگے۔ حالات یہ تھے کہ ایک 14 سال کی لڑکی نے خودکشی کر لی تاکہ اس کو 21 مئی نہ دیکھنا پڑے، جبکہ بہت سے لوگ گھروں میں بنکر بنا بنا کر چھپ گئے۔ میڈیا بھی دیکھتا رہا۔ 21 مئی کو کوئی قیامت نہیں آئی۔ جب میڈیا والے ہیرلڈ کیمپنگ کے ماننے والوں کے انٹرویو لینے گئے تو انہیں لگا کہ شاید وہ لوگ راہ راست پر آ گئے ہوں گے، لیکن الٹا وہ لوگ میڈیا والوں سے لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ قیامت اس لیے نہیں آئی کیونکہ ہمارے ایمان کو چیک کیا جانا تھا کہ کون لوگ 21 مئی کے بعد ہیرلڈ کیمپنگ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ حساب کتاب سے بتاتے رہے کہ ہیرلڈ کی بات درست تھی، بس تاریخ چند ماہ آگے کی تھی۔ میڈیا والے یہ سن کر حیران و پریشان رہ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد اسی ہیرلڈ کیمپنگ نے قیامت کی نئی تاریخ دے دی جو کہ اب 21 اکتوبر 2011 کو آنے والی۔ اس کے ماننے والے دوبارہ سے قیامت کے انتظار میں مصروف ہو گئے، لیکن قیامت دوبارہ نہیں آئی۔ اس دفعہ میڈیا والوں کو یقین تھا کہ اس کے ماننے والے یا تو ساتھ چھوڑ گئے ہوں گے یا پھر توبہ طائب ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کو حیرت تب ہوئی جب ہیرلڈ کے ماننے والے کہنے لگے کہ ہیرلڈ کا جو قیامت کا تصور ہے وہ دراصل روحانی قیامت کا ہے، جبکہ تم لوگ دنیاوی قیامت کا سوچ رہے ہو۔ اب کچھ عرصے بعد ہیرلڈ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ وہ غلط تھا، البتہ اس کے پیروکاروں نے پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ اس سے بہتر مثال آپ کو کلٹ کا مطلب سمجھانے کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ کلٹ کی تعریف لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ بالکل ہی انتہا پسند نظریات یا کسی شخصیت سے انتہا پسند عقیدت رکھتا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران اس گروپ کے لوگ اپنی انفرادی سوچ چھوڑ کر اس شخصیت یا نظریے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے لگ پڑتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے بہت سے دوست اب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ایسا تو دنیا کے بہت سے مذاہب میں بھی ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، لیکن جب یہ کلٹ سیاسی میدان میں آ جائے تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آئیں آپ کو بتا دیں۔ ایک کلٹ کی چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کی انفرادی حیثیت کا خاتمہ۔ آپ کی ذات کا ایک کلٹ میں خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا آپ کے ایک لیڈر کے ارد گرد گھومتی ہے، پوری دنیا کے ملک اس لیڈر کے آگے پانی بھرتے ہیں۔ وہ لیڈر ہے تو آپ کی زندگی ہے اور وہ لیڈر نہیں تو آپ کے زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ 1993 میں امریکہ میں ایک ایسے ہی کلٹ نے ہیڈ لائنز بنائی جب ایک شخص ڈیوڈ قریش پر الزام لگا کہ وہ ایک کلٹ بنا کر امریکی حکومت کے خلاف اسلحہ جمع کر رہا ہے۔ جب امریکی ایجنسی FBI ریڈ کرنے گئی تو پتہ چلا کہ ڈیوڈ قریش نے سچ میں ایسا پلان بنایا ہے۔ اس کے پاس اس وقت 76 لوگ موجود تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے جو کہ اس کے کلٹ کا حصہ تھے اور اس کو مسیحا مانتے تھے۔ ڈیوڈ قریش نے گرفتاری کے خوف سے جنگ چھیڑ دی اور آخر میں جس عمارت میں وہ چھپا ہوا تھا اس کو خود ہی آگ لگا دی، جس سے 76 لوگ اپنی جان کھو گئے جن میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ نمبر 2، تنقید برداشت نہ کرنا۔ ایک کلٹ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جس طرح عام دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی تنقید برداشت کرتے ہیں، ایک کلٹ میں لوگ تنقید کے جواب میں اگلے پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک صحافی کچھ بولے تو ایک کلٹ کے لوگ جواب میں اس کی تنقید کو اپنی ذات پر حملہ سمجھ کر اس کو یا اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات یہ کلٹ حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسا امریکہ میں 1969 میں ہوا جب چارلز مینسن نامی شخص نے ایک کلٹ قائم کیا اور جب اس پر تنقید ہوئی تو اس نے اپنے ذاتی اختلافات پر کئی لوگ قتل کروا دیے کیونکہ اس کے پیروکاروں کے نزدیک وہ اس دور کا
मसीहा था। नंबर 3, एक कल्ट अपने तमाम मेंबरों पर कंट्रोल रखता है। जो कल्ट लीडर की राय होगी वो सबकी राय होगी। ये कल्ट लीडर जानता है कि जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं उनकी कमजोरियां क्या हैं, वो कैसे उसके पीछे चलेंगे, और वो फिर इन कमजोरियों का इस्तेहसाल शुरू कर देता है। ऐसा ही एक कल्ट लीडर जिम जोन्स ने 1978 में किया, जब इसने गुयाना के शहर जोन्सटाउन में अपने 900 पैरोकारों को जहर मिला जूस पिला दिया, क्योंकि उसको हर वक्त एक खौफ रहता था कि कहीं मेरे अंधे पैरोकार मुझे छोड़कर ना चली जाएं। इसलिए बेहतर यही है कि उनको मैं अपने साथ खत्म कर दूं। जिन लोगों ने ये जहर मिला जूस पिया उनको भी इल्म था कि इसमें जहर है, लेकिन वो फिर भी पी गए क्योंकि उनको अपने कल्ट लीडर पर अंधा भरोसा था। नंबर 4, अस वर्सेस देम की सोच होना। एक कल्ट लीडर का सबसे अहम काम अपने पैरोकारों को दुनिया से काटना होता है ताकि उनकी इंफरादी हैसियत खत्म हो जाए। इस मकसद के लिए वो कल्ट लीडर उनको एहसास दिलाता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, हमारा ग्रुप पूरी दुनिया से बेहतर है और बाकी सब ग्रुप्स हमसे कई दर्जे नीचे। अपने मुखालफिन पर ऐसे अजीबो गरीब इल्जामात लगाए जाएंगे कि जैसे दुनिया की सब बुराइयों की जड़ उनके मुखालिफ हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया की दूसरी जंग अजीम है, जिसमें हिटलर ने अपने आर्यन कल्ट की बुनियाद रखी। जर्मन अवाम को बताया कि दुनिया पर हुकूमत तुम्हारा पैदाइशी हक है। इस सोच के तहत हिटलर ने यूरोपियन ममालिक पर हमले शुरू कर दिए। लाखों लोग अपनी जानों से गए, जिसकी वजह यही सोच थी। जब हिटलर को शिकस्त हो गई तो अलाइड फोर्सेस ये मनाजिर देखकर हैरान रह गईं कि जर्मनी में उस वक्त नाजी हुकूमत ने बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां कायम की हुई थी। जर्मन ख्वातीन को खसूसी तौर पर जर्मन नस्ल के बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस मकसद के लिए उनको माहाना तनख्वाह दी जाती। नंबर 5, हकीकत से दूर कर देना। एक कल्ट लीडर चूंकि अपने पैरोकारों पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश होती है कि उनको हकीकत से दूर कर दिया जाए। उनको ऐसे अजीबो गरीब नजरियात दे दिए जाते हैं जिनसे उनकी सोच एक आम आदमी की सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाती है। चलें, दुनिया की आपको बहुत मिसालें दे दी, अब आपको पाकिस्तान ले चलते हैं। ये बयान तो आपने सुना ही होगा कि जिस रोज हम हुकूमत में आएंगे उससे अगले ही दिन पाकिस्तान के स्विस बैंकों में मौजूद 200 अरब डॉलर हमारे पास आ जाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या ये हकीकत पर मबनी दावा है? लेकिन ये कल्ट लीडर ऐसे ही दावे करेंगे। वो बोलेंगे कि 5000 लोगों को फांसी दे दो तो मुल्क ठीक हो जाएगा। 5000 लोगों को फांसी देने के बाद मुल्क कैसे ठीक होगा? इस मिसाल से आपको कल्ट की छठी खसूसियत भी हम बताते हैं, जो कि मुश्किल मसाइल का सतही हल है। ये कल्ट लीडर्स हर मुश्किल मसले का इतना आसान और सतही किस्म का हल बताते हैं कि लोग समझते हैं कि ये वाकई में मसीहा हैं। जैसे नवाज शरीफ या जरदारी को जेल भेज दो तो मुल्क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान दौर में ऐसा कर भी दिया गया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। आखिर में नतीजा यही निकला कि हुकूमत को अगर मसाइल हल करने होंगे तो अमली इकदामात और पॉलिसी से मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ कल्ट की सोच चूंकि आम आदमी की सोच से मुख्तलिफ हो चुकी होती है, लिहाजा ये सादा सा हल उनके नजदीक वाकई में हर मसले का हल होता है। आपको आलमी मिसाल देते हैं। कंबोडिया में 1975 में खमर रोग नामी एक तंजीम की हुकूमत कायम हुई। उनके लीडर पोल पोट ने एक कल्ट बनाया और वो कहता था कि अगर हमारे सब लोग बराबर हो जाएं और मिलकर पूरा मुल्क अनाज उगाए तो हमारे सब मसले हल हो जाएंगे। हुकूमत में आते ही उसने अमीर लोगों को खत्म करवाना शुरू कर दिया, जमीनें छीन ली, सबको खेती बाड़ी पर लगा दिया। सिर्फ उन 4 सालों में कंबोडिया में 20 लाख लोग भूख, अफलास, बीमारियों और जबरी मजदूरी की वजह से फोत हो गए, क्योंकि पोल पोट के नजदीक यही सादा सा हल कंबोडिया के तमाम मसाइल हल कर सकता था। अब जब एक कल्ट बन जाता है तो आप उनसे हर किस्म के नुकसानदेह एक्शन की तवक्को कर सकते हैं। ये कल्ट मिलकर इज्तिमाई खुदकुशी कर सकते हैं। ये कल्ट मिलकर अपने मुखालफिन पर हमले कर सकते हैं। ये कल्ट मिलकर किसी भी मुल्क में फसाद फैला सकते हैं और हिटलर की तरह ये कल्ट मिलकर पूरी दुनिया में भी फसाद फैला सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में कल्ट बनाना एक बुरा अमल समझा जाता है। 1995 में टोक्यो में एक ट्रेन स्टेशन पर दुनिया का खतरनाक तरीन सारिन गैस अटैक हुआ। ये गैस इस कदर खतरनाक होती है कि जैसे ही इंसान इसके करीब आता है तो सिर्फ हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन हमारा जिस्म काम करना छोड़ देता है। हमारे फेफड़े सांस तक लेना छोड़ देते हैं और कुछ ही मिनट में इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। टोक्यो में यह हमला ओम शिरंकियो नामी एक कल्ट ने किया, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया खत्म होने वाली थी। लिहाजा दुनिया को बचाने का वाहिद तरीका जापान में हुकूमत तब्दील करना था, इसलिए उन्होंने ये हमला कर दिया। अब इस हमले की क्या लॉजिक थी ये तो वो कल्ट ही बेहतर बता सकता है, क्योंकि एक कल्ट की सोच हमारी सोच से बहुत
मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया 1997 में कैलिफोर्निया में हुआ, जब हेवंस गेट नाम के एक कल्ट में ये सोच पैदा हो गई कि अगर हम एक शहर सेंटा फी में मिलकर खुदकुशी कर लें तो आसमान में जैसे ही एक दुमदार सितारा आएगा हम सब एक स्पेसशिप में पहुंच जाएंगे। 39 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। जब ऐसे ही कल्ट सियासत में आ जाएं तो किसी भी मुल्क की सियासत भी तबाह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आते तो जमहूरी शक्ल में हैं, लेकिन इक्तदार मिलते ही वन पार्टी हुकूमत पर जाना शुरू कर देते हैं। शेख मुजीब को जनरल अयूब खान की मुखालफत की वजह से पाकिस्तान में शदीद जमहूरी लीडर माना जाता है, लेकिन वही शेख मुजीब जब बांग्लादेश में इक्तदार में आते हैं तो अवामी लीग का वन पार्टी रूल नाफिज करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उस मुल्क की अक्सरियत उनके खिलाफ हो जाती है और फिर मार्शल लॉ लग जाता है। ये कल्ट जदीद दौर के चैलेंजेस से खुद को तैयार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तवज्जो सिर्फ एक लीडर पर होती है। लिहाजा जब भी कोई नई चीज माशरे में आती है, ये कल्ट लीडर अपनी पुरानी सोच लेकर चलते हैं, जिससे मुल्कों की तरक्की रुक जाती है। एक कल्ट लीडर की सियासी जमात में अंदरूनी फसादात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश कल्ट लीडर को खुश करने की होती है, लिहाजा वो कल्ट लीडर के करीबी लोगों का रास्ता काटना शुरू कर देते हैं। मुख्तसर ये कि ऐसी सियासी जमातों का फोकस अवाम की फलाह की बजाय सिर्फ लीडर की एक मुस्कुराहट या खुशी देखना होता है। जब ये कल्ट लीडर इक्तदार में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई नजर आएगी, आपको बहुत ज्यादा तकरीबों का इफ्तिताह होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड पर कभी काम नजर नहीं आएगा। जब ऐसे कल्ट लीडर इक्तदार में पहुंच जाएं तो अपनी नाअहली छुपाने के लिए फिर वो सियासी मुखालिफिन पर जुल्म करने लगते हैं और आखिर में जमहूरियत का नकाब उतर जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वो जबर से कंट्रोल रखेंगे तो उनके लिए माशरे को काबू में रखना ज्यादा आसान होगा। ये कल्ट तारीखी एतबार से मुल्कों को कई साल पीछे ले जाते हैं। हिटलर और मैसोलिनी के कल्ट की वजह से जर्मनी और इटली तारीख में 20 साल पीछे चले गए, लेकिन इस कल्ट का कोई इलाज भी तो होता होगा। इलाज मौजूद है, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है, लेकिन किसी को ये बताना कि तुम बेवकूफ बन रहे हो इंतहाई मुश्किल काम। कल्ट का इलाज तालीम आम करने और क्रिटिकल थिंकिंग से मुमकिन है, लेकिन ये तालीम हमारी रट्टे वाली तालीम नहीं बल्कि कंसेप्चुअल लर्निंग होती है कि मुल्क कैसे चलता है, मईशत कैसे चलती है, ब्यूरोक्रेसी का निजाम कैसे चलता है। ये सब अवाम को समझाया जाता है ताकि अवाम को पता हो कि ये सब इतना आसान नहीं। सिर्फ 5000 लोगों को फांसी देने से मुल्क ठीक नहीं होगा, बल्कि हमें निजाम का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट चाहिए। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की बात करे तो उससे सवाल किया जाए कि भाई तुम अंग्रेज दौर का जो निजाम है उसको कैसे खत्म करोगे, तुम्हारा प्लान क्या है। अगर कोई ये बोले कि जी एस्टेब्लिशमेंट को हमने सियासत से हटाना है, तो चंद जर्नैल हटाने की बजाय अवाम ये सवाल पूछे कि जिस तरह चीन ने एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से हटाया, आप भी हमें कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान देकर दिखाएं कि आप ये अमल कैसे करेंगे। अगर आपका मकसद हुकूमत को बेहतर बनाना है तो आप ये कैसे मुमकिन करोगे। लेकिन दोस्तों, जब तक ये रट्टे का निजाम पाकिस्तान के तालीमी निजाम में मौजूद है, तब तक कल्ट्स को रोकना बहुत मुश्किल है। हम डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन 100 डिग्री वालों में से 1 या 2 ही आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अपने मौजू की समझ हो। लेकिन सिर्फ तालीमी निजाम में तब्दीली से ये मसला हल नहीं होगा। जो लोग कल्ट के मेंबर रह चुके हैं उनकी बहाली का प्रोग्राम भी बनाना चाहिए, ताकि वो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन करें और बाकायदा ग्रुप सेशंस के जरिए खुद को इस कल्ट के असरात से निकालें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होता है, ताकि मुल्क में हर शख्स ये जानता हो कि अगर मैंने कानून तोड़ा तो मैं भी गिरफ्त में आ सकता हूँ। हुकूमत अपने सब कामों में शफाफियत रखे, अवाम को एक एक चीज से आगाह रखे ताकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ना लें। मीडिया का भी किरदार होता है कि वो जाली खबरों की बजाय असली खबर दें। इस सिलसिले में सख्त मीडिया कानून भी नाफिज होने चाहिए। लोगों के आपस में बहसो मुबाहिसा परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि कल्ट मेंबर्स को अपनी मुखालिफ सोच से बात करना या उनकी बात पढ़ने से रोक देने का दर्ज दिया जाता है। आम शहरियों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया जाए, कानूनी तौर पर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे कानून मुतारिफ करवाए जाएं जो लोगों को बिलखसूस कल्ट्स जैसे रवैये अपनाने से रोकें। अगर ये सब अमल किए जाएं तो मुस्तकबिल में कल्ट बनाने के अमल को रोका जा सकता है, लेकिन जो लोग कल्ट के मेंबर्स बन जाते हैं उनको निकालना इंतहाई मुश्किल और लॉन्ग टर्म काम। पाकिस्तान को भी आज ऐसे ही मसाइल का सामना है जिसमें कसूर सिर्फ एक लीडर का नहीं बल्कि हमारे निजाम का भी है, लेकिन ये नामुमकिन चैलेंज नहीं। अगर पाकिस्तानी रियासत आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम शुरू कर दे तो जल्द इंशाअल्लाह हम भी इस अफियत से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमने ये चीज देखी है कि आप में से बहुत से दोस्त हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन आप हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस मजीद दोस्तों तक जाएं। बहुत शुक्रिया।